کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پیسے چل رہے ہیں مسرت عالم بٹ کے پاکستان میں نمائندہ ہیں، وہ بھی پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے دائیں طرف نماز کی جگہ ہے، جن بھائیوں کو وضو ہے وہ یہاں نماز پڑھیں. کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا کشمیری آزادی کشمیر کا قائل ہے اور وہ یہ مرتے دم تک قائل رہے گا، کیونکہ کشمیر کی آزادی کا واحد حل جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہندوؤں کے لیے قتال فی سبیل اللہ ہے. میرے بھائیوں، میں جس ایریے سے آیا ہوں وہاں سے ایک دو نہیں لاکھوں جموں کے لوگوں نے قربانیاں پیش کر کے کلمے کی بنیاد پر ہجرت کی تھی. میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ LA3 یہ برسٹر بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. چمن چمن کلی کلی اسرائیل سن لے، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ ہم طارق بن زیاد کے بھائی ہیں، ہم محمد بن قاسم کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ نعرے کا جواب دیجئے. انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ یہ LFC یہ خونی لکیر انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ ہم نے اپنے پاؤں سے روندیں گے. انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سب سے اجازت لوں گا. ہماری منزل صرف مقبوضہ کشمیر نہیں، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ دلی، کولکتہ، کیرلا، پورے کا پورا ہندوستان ہمارا. انشاءاللہ منزل سے آگے منزل تلاش کر. جناب کونسلر شبیر صاحب سنیے گا، منزل سے آگے منزل تلاش کر. دریا مل جائے تو سمندر تلاش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاورفل سرکلز میں ڈیسائیڈ کر دیا کہ انہوں نے پھانسی گھاٹ پہ چڑھانا ہے یاسین ملک صاحب کو. تو ایسی صورت میں آپ نے یہ اجتماع کیا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن آپ ایک میسج کنوے کریں کہ کشمیری ایک ہیں، ایک رہیں گے، جدھر جائیں گے متحد رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، ڈیوائڈ نہیں ہوں گے، تقسیم نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی جوائنٹ ہو کے فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ. بہت جزاکم اللہ خیرہ. میں محترم کامران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اپنے ایک ایک کشمیری بھائی کو، اپنے ایک ایک مجاہد اور فریڈم فائٹر کو آج میر پور کی سرزمین سے، آزاد کشمیر سے ان کی لازوال قربانی پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے آپ کو جیلوں کے اندر یہ پیغام دیا ہے. اس تحریک میں آپ تنہا نہیں ہیں، پوری آزاد کشمیر کی عوام اور پاکستان کی غیرت مند عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس تحریک میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد بہت شکریہ. اس کے بعد میں اس قافلہ حریت کے سالار میری مراد وہ میرے چیئرمین تو ہیں، میرے لیڈر تو ہیں، لیکن آج وقت اور حالات نے یہ ثابت کیا، تاریخ ہمیشہ سچ لکھتی ہے، تاریخ کبھی جھوٹ نہیں لکھتی، کہ محمد یاسین ملک آج آر اور پار 84,471 مربع میل کے اندر بسنے والے سارے کشمیریوں کا متفقہ لیڈر ہے. آج وہ پوری کشمیری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ یاسین ملک، وہ آپ کا اور میرا قائد، جس کے جسم کا ایک ایک انگ، جو ہارٹ کا پیشنٹ، جس کے گردے ختم،
और बाजू और पसलियां इस तारीख में टूटी हुई हैं, लेकिन वो जज्बा उसका कि उस जालिम दुनिया के फाशिस्ट हुक्मरान मोदी, जिसने जुल्म का कोई ऐसा तरीका जो मकबूला कश्मीर के लोगों और लीडरशिप के ऊपर कौन सा ऐसा तरीका है जो नहीं आजमाया, लेकिन आपके और मेरे कायद ने वो मिसाल पेश की है अपने कायद मकबूल भट्ट के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिसको 11 फरवरी 1983 को दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर जब फांसी के फंदे पर जुड़ाया जा रहा था, कोई किसी को पता नहीं था, ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, ना JKLF मैदान अमल में था, तो मेरे और आपके कायद ने ये आखिरी अल्फाज मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में डाला था कि मेरे कश्मीर, तू जरूर आजाद होगा, तू जरूर आजाद होगा। सब आज स्टेज से ऐलान कर रहा हूं जिम्मेदार होने की हैसियत से, तमाम नजरियात से बालातर, कबीलाइज्म, इलाकाइज्म, फिरकावारियत से बाहर होकर हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। आइए हम एक होकर एक प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम कश्मीरी एक हैं। और दूसरा, मुजफ्फराबाद के अंदर बैठी हुई ये जो 53 जिंदा लाशें हैं, इससे ज्यादा पार्लियामानी अल्फाज मेरे पास और कोई नहीं है। जिन्होंने 5 अगस्त के बाद हमारा वज़ीर आज़म औरतों की तरह रोता रहा, मेरे नानी के ख्वाब दिखाता रहा, हमने उससे कहा आगे बढ़ो, कहता है जी अभी मुश्किल वक्त के लिए पे तैयार बैठे, 2 मिनट लूंगा आपके। वो किसी घर में डकैती हो गई, रात को उसके पास गन भी थी, आखिर पे मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, उसकी वाइफ की इज्जत पर हाथ रखा गया। सुबह गांव वाले जमा हुए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास गन थी, तुमने चलाई क्यों नहीं? उसने कहा मुश्किल वक्त के लिए रखी। ठीक है, ये सूरत हाल है, इसलिए मैं आखिरी बात का इजाजत चाहता हूँ। एक हल है, सिर्फ एक, यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे बैठे हैं, कोई दूसरा हल नहीं है। जब तक हम अपना मुकदमा खुद नहीं लेकर जाएंगे दुनिया के पास, कश्मीरी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। दुनिया को हिंदुस्तान के साथ ज्यादा तलाकात हैं, ज्यादा मफादात हैं, तिजारत है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एक रास्ता कहकर आपसे जाना चाहता हूँ, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक नुमाइंदा कौमी इनकलाबी जमहूरी हुकूमत का क्याम चाहते हैं, जिसमें APIC भी बैठे, जिसमें गिलगित का नुमाइंदा भी बैठे, जम्मू लद्दाख वैली आजाद कश्मीर के लोग बैठकर हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, 2-3 शेर पढ़ लूंगा। फरत रात अंदूरी के कहते हैं कि खिलाफ है तो होने दो, या मायूसी की बात हुई है, खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर रद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और इमरान खान की तरह आजाद कश्मीर के वज़ारत उज़्मा के वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहता हूँ, जो कल साहिब मसनद थे, जो कल साहिब मसनद, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। और आखिर पर इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। ये बात सच है कि शहर तक न रहेंगे हम, ये बात सच है कि शहर तक न रहेंगे हम, लेकिन ये बात तय है कि शहर होकर रहेगी। कश्मीर का परचम लहराते हुए सरदार बाबर साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस परचम के लिए हम एक हैं, आज़ादी के लिए हम एक हैं। इंशाअल्लाह जो बात राजा साहब ने की थी कि अफगानिस्तान के लोगों ने दुश्मन की नापाक साजिशों को कबल अज़ वक्त भांप लेने वाले लोग ही अक्लमंद हुआ करते हैं। कहीं बहादुर शाह जफर की तरह जिसके जासूस, जिसके समझदार लोग आकर कहते थे बादशाह सलामत, अंग्रेज की फौज हिंदुस्तान पे चढ़ गई है, बात जल्द दिल्ली तक पहुंच जाएगी। वो कहता था हुनूज दिल्ली दूरस्त,
दिल्ली अभी दूर है, सब्र करो, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी कमजोरियों की वजह से हिंदुस्तान ने उस मुतनाज़ा खित्ता रियासत जम्मू कश्मीर की 2000 एकड़ अराजी अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं एक बात कुरान की जुबान से आपको कहने लगा हूं। हो सकता है हिंदुस्तान इतनी बड़ी रुकावट ना हो सकता है कि दुनिया का इल्हाद और कुफर इतनी बड़ी रुकावट ना हो। मुझे ये नजर आता है कि जहां आजादियों के मामले होते हैं वहां फिरौनों के साथ, गासबों, जालिमों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, आजादी का हक छीनने वालों के साथ कुछ कमजोरों के कानून भी मिले होते हैं, कानून मिले होते हैं। जरा जायजा लो, परखो। को फांसी देने से बाज आओ, कश्मीर की जमीन को यहूदियों के हवाले ज़राअत के बहाने करने से बाज आओ। मकबूजा कश्मीर में तहरीक से के साथ जुड़े हुए लोगों की घरों को गिराना और उनको हुकूमत के हक में जब्त करने से बाज आओ। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की टारगेट किलिंग बंद करो। LOC के ऊपर निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो। अगर नहीं करोगे तो इस इज्तिमा की वसातत से हम तुम्हें ये पैगाम देते हैं कि इंशाअल्लाह हम तुम्हारे खिलाफ वो जिदोजहद खड़ी करेंगे, तुम्हारे खिलाफ वो काम इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे कि तुम पिछली सारी तहरीक को इंशाअल्लाह भूल जाओगे। इंशाअल्लाह हाथ खड़े करके एक दफा फिर जरा खड़े होकर के धारे हमेशा बहारों में